अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में डकैती की वारदातों में किस हद तक इजाफा हो चुका है। शहरी बिलबुला उठे हैं। सिटी डिवीज़न हो, कैंट डिवीज़न हो, लाहौर का कोई भी डिवीज़न हो जहां पे डकैती की वारदातें ना होती हों। पुलिस क्या कर रही है, डाकू क्या कर रहे हैं, हाउस रॉबरी, शॉप रॉबरी, इतनी तादाद में इजाफा हो चुका है कि लोग परेशान हैं। सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम। घरों में वारदातें भी ख़वातीन उसमें मुलव्वस होती हैं। शहर लाहौर में जो डकैती की वारदातें हैं उसमें बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो चुका है। ख़ातून नौकरी तलाश करती हैं, घर में काम काज करने के लिए जाती हैं, फिर उसके बाद सारा गैंग इसमें मुलव्वस होता है। डकैती और चोरी की बड़ी वारदातें करती हैं। CIA मॉडल टाउन ने जो खातून को गिरफ़्तार किया है उसमें एक खातून है जो मुलज़मा है। उससे पूछते हैं कि किस तरह से ये डकैती की और चोरी की वारदातें करती थी। क्या नाम है बीबी? सुमेरा। सुमेरा नाम है जी। पूरा नाम की है? उफ अल्लाह माफ़ी। सुमेरा उफ अल्लाह माफ़ी। हाँ जी। उफ अल्लाह माफ़ी की मतलब? सुमेरा नाल अल्लाह माफ़ी कहते हैं। अल्लाह माफ़ी कहते हैं। किन्ने नाम रखा तेरा? घरदे ने रखा सी। घरदे ने रखा? जी। ते किहड़े इलाके दी रहन वाली है? साहिवाल दी। साहिवाल दी रहन वाली है। तो उत्थे साहिवाल च भी तैनू सुमेरा उर्फ अल्लाह माफ़ी कहते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, शादीशुदा है? जी हाँ। किन्ने बच्चे ने? एक बेटे। एक बेटी है। जी। ते इत्थे लाहौर दे विच किन्ने अरसे तो रह रही हैं? लाहौर च आईयां 4-5 महीने होए ने। 4-5 महीने होए ने। ते ਹਾਂਜੀ। 4-5 महीने पहले कित्थे रहनी सी? ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ। ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਖਾਮਦ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫੜੀ ਗਈ? ਪਹਿਲੇ 2 ਦਫਾ ਫੜੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਫੜੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੁਫਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੀ ਸਾਂ? ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ? ਵਿੱਚ, ਰਿਆਨਾ। ਉਹ ਰਿਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ? ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਆਨਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਰਿਆਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ? ਡਿਫੈਂਸ। ਡਿਫੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਗੋਲੀਆਂ? ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪ੍ਰਵੇਜ਼। ਪਰਵੇਜ਼। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਚੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ? ਤੂੰ ਸੈਂ, ਰਿਆਨਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਆਨਾ ਖਾਵੰਦ ਸੀ, ਜੀ। ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। 4 ਲੋਕ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ 4 ਲੋਕ ਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ? ਜ਼ੇਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਯਾਤ ਨੂੰ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਯਾਤ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ। 50-60 ਤੋਲੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਦੇ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ- 18 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਦਾ? ਹਾਂਜੀ 18 ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਕਫ ਸੀ? ਜ਼ੇਵਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ? ਰਿਆਨਾ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਫ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾ ਉਹ ਕੇ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਘਰ ਆਪੋ ਆਪ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਤੈਨੂੰ? ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ? ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਆਨਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਆਨਾ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਈਵਾਲ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਬਣੀ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਗਈ ਸੈਂ?
ਨਹੀਂ ਰਿਆਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ 50,000 ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਯਾਤ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਯਾਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ 2 ਦਫਾ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਉਣੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਸੀ। 4-5 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ 9 ਸਾਲ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ? ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ। ਅੱਛਾ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗਵੇਂ 'ਚ ਫੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਆਨਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖ ਲਈ, ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਲਵੀਏ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੈ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਵੇਖਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਫੜਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਆਪੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਂਗੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੈ? ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਇੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ? ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ने मिलन? नहीं जी कोई नहीं। कोई भी नहीं आया? नहीं जी कोई अच्छा। नहीं आया। ये है जी वो वाला डाकू जो शहर लाहौर में डकैती की वारदातें करता है और आम शाहराहों पे घूमने वाले, फिरने वाले, घरों को जाने वाले, काम काज को जाने वाले आम शहरियों से गन पॉइंट पर डकैती की वारदातें करते हैं। CIA मॉल्टो ने इन्हें गिरफ्तार किया है। की नाम है भी तेरा? नाजिद है? नाजिद। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। नाजिद। ਨਾਜਿਦ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? मरीज के ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? सर 6-7 कितनी? 6-7 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी। ਹਜੇ ਤੂੰ 6-7 ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। नहीं ਕਿੰਨੇ सर, ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਵਾਰਦਾਤ? सर मैं काशी चीटा तकीर।
ਕਾਸ਼ਿਫ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਤੁਕੀਰ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਵਾਰਦਾਤ, ਤਰੀਕਾ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ? ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਕੋ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕੀਰ ਤਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਸਰ ਮੈਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲੋਂ ਆਇਆ ਸਰ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ? ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਸਰ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਸਿਰਫ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲੋਂ ਆਇਆ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸ਼ਕਾਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਲਾਮੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਖਰੀਚਾ। ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ ਮਰੀਦ ਕੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਦ ਕੇ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਇਹੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਲੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ, ਬੈਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬੈਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਪਨ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਪਾਊਡਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜੇਲੇ ਰਿਹਾ, ਜੇਲੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਕਫ ਬਣੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਾਕਫ। ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਕੈਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਤੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਾਸ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਘਾਲ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪੀ ਤੂੰ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਨੇ? ਕਾਸ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜੀਚਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਫੜੀਚਾ। ਸਹੀ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਸਰ। ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਨ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਪਾਊਡਰ ਪੀਏਗਾ?
ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਊਡਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਮਿਲਣ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਰਿੱਜਾਂ। ਐ नहीं पता उन्होंने कितने फरीचा। हाँ जी ठीक है, इस तरह के होते हैं जी डाकू जो लाहौर शहर में फिरने वाले, लाहौर शहर में सड़कों पर घूमने वाले जो लोग हैं उनके साथ डकैती की वारदातें करते हैं। ये वो डाकू है जो अपनी सगी भाभी का कत्ल भी करता है लेकिन आज़ाद घूमता है। डकैती की वारदातों में सीआईए पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया और उसी इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी इंकशाफ होता है कि ये कत्ल भी एक कर चुका है, अपनी भाभी को कत्ल कर चुका है और अब ये मज़ीद इंकशाफात भी करेगा और इसके साथी जो हैं वो भी मफरूर हैं जिनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश। जो फर्स्ट रिस्पांस करता है ना यूनिट, उसको बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं क्राइम सीन से। वारदात जो है जैसा कि जुर्म अपना निशान छोड़ता है, बिल्कुल, और कोई ना कोई निशान जो है ना वो जो पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचता है उसको हिम्मत अगर वो करे तो बड़ी नज़दीक तक वो जल्द पहुंच सकता है। ब्लाइंड मर्डर पे या बड़ी वारदात पे अगर जैसे वारदात हुई है तो वारदात में अगर गाड़ी इस्तेमाल हुई है तो हम लोकल कैमरे चेक करें फौरी तौर पे। जो अफसर पहुंचा है कैमरों में एक जगह नहीं दूसरी जगह कहीं पे गाड़ी का नंबर आ ही जाता है। नंबर ना आया हो तो गाड़ी का रूट का पता चल जाता है, किस तरफ से आए हैं। कहीं किसी जगह पे उनकी पिक्चर्स आ जाती हैं कैमरे पे, आके सेफ सिटी में कैमरों से बड़ी मदद मिलती है। फिर जो वारदात करते हैं वो उधर अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करें तो मोबाइल से जियो फेंसिंग की बड़ी मदद मिल जाती है। जब पहला तफ्तीशी जो है ना वो हिम्मत करे तो वो जल्दी ट्रेस कर सकता है। माराथन सेंटर सीआईए के इंचार्ज हैं जी सैयद हसनैन हैदर हमारे साथ, जो लाहौर में क्राइम रेट जो बढ़ रहा है उसके हवाले से सीआईए माराथन जो है वो काफ़ी अहम इक़दाम कर रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों या हाउस रॉबरी हो, डकैती की वारदातें हों, उसके मुलजमान को गिरफ़्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। खातून समेत दीगर मुलजमान जो हैं वो भी गिरफ़्तार किए हैं सीआईए ने। हसनैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। हसनैन साहब, लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। ये भी ठीक है कि ख़ासकर सीआईए जो है वो डकैती की बड़ी वारदातें करने वाले मुलजमान को गिरफ़्तार करता है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। जिन मुलजमान को आपने पकड़ा है ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, कितने अरसे से डकैती की वारदातें कर रहे हैं, कुछ तफसील इसकी बताइए। ये मुलजमान जो हमने पकड़े हैं, एक तो लेडीज़ को पकड़ा है, ठीक है, मेरा नाम है इसका। ये ऐसे करते हैं कि घरों में नौकर बन के जाते हैं और उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन के लिए जाते हैं, शनाख्ती कार्ड अगर इनसे मांगते हैं तो कहते हैं हम 1-2 दिन में मंगवा देंगे। ठीक है, शनाख्ती कार्ड मंगवा के नहीं देंगे उनको और उस 2-3 दिन में घर का सफाया करके निकल जाएंगे। अगर घर वाले कहीं ना निकल सकें तो ये घर वालों को नशावर चीज़ें पिला के अपने साथियों को बुला के तो वारदात भी कर लेती हैं। तो ये काफ़ी अर्सा से वारदात कर रही हैं। इससे पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, चलान हुई है, दोबारा आई हैं तो अभी इसने डिफेंस जैसे पोश इलाके में ज़्यादातर ये वारदात करते हैं। डिफेंस हो गया, वलंशिया, माल्टोन, जोहटोन, इस तरह के इलाकों में अक्सर ज़्यादातर इनकी वारदातें हैं। ठीक है। अच्छा हसनैन साहब, ख़वातीन के साथ डकैती की वारदातें जो घरों में जाके ख़वातीन काम करने का बहाना बनाकर नौकरी हासिल कर लेती हैं और अक्सर ये वाक़यात सामने आते हैं कि घर में डकैती अगर हुई है तो उसका इन्फॉर्मर और उसका जो रिसीवर है वो खातून होती है, घर की मुलाजमा। तो क्या वजह है कि लोग इसके बावजूद इतना कुछ होता है, इतना कुछ पता चलता है कि वारदात होती हैं, फिर भी बग़ैर शनाख्त के, बग़ैर किसी की गारंटी के लोग जो हैं ऐसी ख़वातीन को घर में रख लेते हैं? ये है कि इस तरह के इलाकों में नौकर रखना हर किसी की मजबूरी है, घर की देखभाल के लिए, घर की सफाई के लिए।
घर बड़ा होता है, घर वाले खुद तो कर नहीं सकते। तो जैसे ही नौकर मिलते भी तो बहुत कम है, तो ये चलते फिरते रहते हैं, या किसी के ज़रिए, किसी काम करने वाले के ज़रिए उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकातें करेंगी, उसको कहेंगे हमें नौकर रखवा दो। वो जिधर मोहल्ले में किसी को ज़रूरत होगी वो बता देगी उस घर में नौकर की ज़रूरत है, तो कह देंगे हमें ना उस घर में काम करने वाली है, उसने भेजा है। हालांकि उसके जानने वाली नहीं होती, उसको पता भी नहीं होता कि ये कौन है, किधर से। वो भी कहते हैं मजबूरन रख लें इसको, और शनाख्ती कार्ड मांगते हैं तो वो एतमाद इस तरह की कहानी सुना देती हैं उनको कि वो एतमाद कर लेते हैं इन पे। तो ये शनाख्ती कार्ड जब तक आना होता है तब तक ये घर का सफाया कर जाती हैं। अच्छा स्नैन साहब, जिस बंदे का रिकॉर्ड नहीं होता, अगर शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता, कोई तस्वीर, कोई ऐसा विजुअल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे डाकुओं को पकड़ना? ये बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं ज़्यादातर, तो सिर्फ अक्सर वीडियो कैमराज में आ जाते हैं, या जियो फेंसिंग के ज़रिए हम इनको ट्रेस कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से ट्रेस करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर पता हो तो फिर तो फ़ौरन पता चल जाता है। फिर ये पुरानी जो रिकॉर्ड याफ्ता होती हैं वो हमें पिक्चर से उनकी मतलब काफ़ी CRO से मालूमात मिल जाती हैं जो चलान की होती हैं। अच्छा स्नैन साहब, ये बताएं कि जो डकैती की वारदातें हैं पिछले कुछ अरसे से, बल्कि कई सालों से ऐसा होता है कि हर नया आने वाला साल जो है उसमें डकैती की वारदातों में इजाफा होता है। और ये जो डकैती करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट पर, सड़कों पर डकैती की वारदात करें या हाउस रॉबरी करें, ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग ज़्यादा होते हैं। क्या वजह है कि ये जेल में भी जाते हैं, आप लोग उनको पकड़ते भी हैं, जेलों में भी भिजवाते हैं, फिर उसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो फिर वारदातें करते हैं? एक तो लाहौर की आपको पता है आबादी बहुत ज़्यादा है, और दिन ब दिन आबादी में इजाफा होता जा रहा है। और दूसरा, रिकॉर्ड याफ्ता जो है वो जब जेल से निकलता है ना, एक बंदा निकलता है तो वो 7-3 बंदे और मिला के वारदात कर लेता है, वो नया गैंग बना लेता है। और जेल में उसका काफ़ी लोगों से, दीगर जराइम पेशा लोगों से उसका रब्ता हो तो उनमें से कोई निकले तो उसको साथ मिला लेते हैं। इस तरह गैंग, फिर एक गैंग के कई गैंग बन जाते हैं। और इनका सज़ा ना होने की वजह मेन ये है कि जो जिनकी वारदात होती है वो अक्सर लोग पैरवी नहीं करते, वो गवाहियाँ देने नहीं जाते, पैरवी नहीं करते, तो जिस वजह से इनको निकल आते हैं, ये ज़मानतें करवा के निकल आते हैं। पैरवी बहुत कम लोग करते हैं। मतलब आपका मतलब है कि अगर किसी के साथ वारदात होती है, डकैती की वारदात होती है, और वो जो मुकदमे का मुद्दई है वो उस तरह से अदालत में जाके पैरवी नहीं करता, केस की जो है वो पैरवी नहीं करता, तो उसकी वजह से उसको रिलीफ मिल जाता है अदालत से। जी बिल्कुल, उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो पैरवी नहीं हो रही होती, तो पीछे जा कोई नहीं रहा होता। अदालत ने सज़ा देनी होती है इनको एविडेंस पे, वो एविडेंस मुकम्मल नहीं होती, तो उस वजह से अक्सर इनको फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा, आपने जिस तरह से बताया कि ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग होते हैं, जब ये जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद ये फिर डकैती की वारदातें करते हैं, तो ये कोई तादाद एक मुतात अंदाजे के मुताबिक होगी कि लाहौर में अगर करोड़ों की आबादी है तो कितने डाकू होंगे जो बार बार वारदातें करते हैं और गैंग नए बनाते हैं? जी ये बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्ड होता है, जो जेल से रिहा होकर आ जाते हैं उनका रिहा याफ्ता का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है, इसीलिए तो जी जल्दी CIA वाले इनको ट्रेस कर लेते हैं। हमें तरीका वारदात का अक्सर अंदाज़ा हो जाता है, जो गैंग निकलते हैं वो उनका पता होता है कि कौन कौन सा गैंग बाहर आ चुका है, फिर हम उन पे वर्क करना शुरू हो जाते हैं। उनके पुराने कुछ रिकॉर्ड, कुछ पुराने नंबर हमारे पास, कुछ फैमिली के नंबर, फैमिली ट्रीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं, वो उनसे हमें काफ़ी हेल्प आउट होते हैं। और फिर कई नंबर ऐसे आ जाते हैं, फिर उनसे मज़ीद हमें नंबर निकालने में मदद मिल जाती है कि ये आजकल इसके पास अंदाज़ा कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहा होगा, किस इलाके में रह रहा होगा। तो ज़ाहिर बात है ये ज़्यादातर रेंट पे रहते हैं लाहौर में, जब एक दफ़ा पकड़े जाते हैं तो वो घर छोड़ जाते हैं, फिर वो नया घर नए इलाके में चले जाते हैं, नया तरीका अपना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सराय साहब ये बताइएगा कि बतौर SHO आप भी बहुत सारे लाहौर में इलाकों में रहे हैं, बड़े थानों में आपने जो है सर्व किया है, स्ट्रीट क्राइम रोकना ऑपरेशन पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है? क्या ऐसा कुछ करना पड़ता है कि SHO क्या इक़दाम करे कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में चले मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए, कमी हो जाए, लेकिन उनके ऐसा ना करने से फिर सबसे बड़ा टारगेट CIA को दिया जाता है, बड़ी हाउस रॉबरी हो जाए, ब्लाइंड मर्डर हो जाए, कोई ऐसा केस आ जाए, फिर वो CIA की ज़िम्मेदारी होती है। तो आप ये समझते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें रोकने में ऑपरेशन पुलिस भी कोई मदद कर सकती है?
असल स्ट्रीट क्राइम रोकने में मेन रोल ऑपरेशन का ही होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं लाहौर में काफ़ी थानों में SHO वर्क कर चुका हूँ, तो मेन काम जो है ना स्ट्रीट क्राइम रोकना वो ऑपरेशन की जिम्मेदारी है। और काम भी रोक भी ऑपरेशन ही सकता है। वो उसके लिए वो गश्त को मौसर बनाए, चेकिंग करे, अपने इलाके के जितने रिकॉर्ड याफ्ता हैं उन पे रेड करते रहें, गाहे बगाए उनको चेक करते रहें, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है स्ट्रीट क्राइम में और क्राइम में, वारदातों में। जो इलाके में क्राइम हो रहा होता है वो SHO के नॉलेज में आ जाना चाहिए, कि SHO को पता होना चाहिए मेरे इलाके में कौन कौन सी पॉकेट है जिधर क्राइम हो रहा है, जिधर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है या दीगर कोई क्राइम हो रहा है। वो एक हफ्ता 10 दिन में SHO को पता चल जाता है। और वो SHO की ही कमज़ोरी होती है कि अगर उसके इलाके में वारदात बढ़ जाए तो। हाँ, जैसे कुछ इलाके, कुछ थाने बड़े हैं जिनमें नहीं, मसलन कान्ना हो गया, रायवेंड है, शादरा है, इस तरह के इलाके में क्राइम रोकना थोड़ा मुश्किल SHO के लिए हो जाता है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा, इलाके बहुत बड़े हैं और मुश्किल होती है गश्त। बाकी जो छोटे इलाके हैं उनमें तो SHO क्राइम चाहे तो रोक ही सकता है, अगर वो हिम्मत करे, मेहनत करे तो। अपनी गश्त को मौसर बनाए, बार बार खुद चेक करता रहे, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। चेकिंग कर रहे हैं, लोग आएंगे, मशकूक लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड याफ्तगान पर नज़र रखें, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है क्राइम रोकने में। बिल्कुल। और बतौर DSP आप मॉडल टाउन में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो टारगेट्स जो है वो मिलते हैं कि जो बड़ी वारदातें हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन यकीनन जो इब्तदा है वो ऑपरेशन विंग से होनी है, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन के पास आती है, इन्वेस्टिगेशन भी उसमें कामयाब नहीं होती तो फिर CIA को टारगेट जो है वो मिल जाता है। तो किस तरह के टारगेट ज़्यादा होते हैं? इसमें CIA को अक्सर केस जो मिलते हैं वो तकरीबन ख़राब हुए, बिगड़े होते हैं, ना हल होने वाले। और जो फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है ना यूनिट, उसको बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं क्राइम सीन से। वारदात जो है, जैसा कि जुर्म अपना निशान छोड़ता है, बिल्कुल, और कोई ना कोई निशान जो है ना, वो जो पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचता है उसको हिम्मत अगर वो करे तो बड़ी नज़दीक तक वो जल्द पहुंच सकता है। ब्लाइंड मर्डर पे या बड़ी वारदात पे, अगर जैसे वारदात हुई है तो वारदात में अगर गाड़ी इस्तेमाल हुई है तो हम लोकल कैमरे चेक करें फौरी तौर पे, जो अफसर पहुंचा है कैमरों में एक जगह नहीं दूसरी जगह कहीं पे गाड़ी का नंबर आ ही जाता है। नंबर ना आया हो तो गाड़ी का रूट का पता चल जाता है, किस तरफ से आए हैं, कहीं किसी जगह पे उनकी पिक्चर्स आ जाती हैं कैमरे पे आके। सेफ सिटी में कैमरों से बड़ी मदद मिलती है। फिर जो वारदात करते हैं वो उधर अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करें तो मोबाइल से जियो फेंसिंग की बड़ी मदद मिल जाती है। जब पहला तफ्तीशी जो है ना वो हिम्मत करे तो वो जल्दी ट्रेस कर सकता है। ये थे जी इंचार्ज मॉडल टाउन CIA, जिनका ये कहना था कि लाहौर शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता है उनकी कौन सी पॉकेट्स हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर डकैती की ज़्यादा वारदातें होती हैं, उनको कंट्रोल करना SHO की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और उसके बाद जब खुदा न खास्ता वारदात होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन की ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ पे वो तमाम शवाहिद, तमाम क्वाइफ जो हैं वहाँ से जमा करे, और जब उसमें भी कामयाबी ना हो तो फिर ज़िम्मेदारी और टास्क CIA को दिया जाता है। और यकीनन CIA जो है वो बड़ी वारदातों में और ब्लाइंड मर्डर्स में कामयाबी भी हासिल करता है और मुलजमान को भी पकड़ा जाता है। लेकिन करने की ज़रूरत है अमली तौर पे कि ऑपरेशन विंग उसको भी मुतरक किया जाए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तरीके से सरअंजाम। आइस पीते हैं, नशे करते हैं, इधर मेंशन में इतने का नशई है ना, हद से ज़्यादा। क्या करें, किसको पकड़ें? वो जो पकड़ते हैं वो आगे से अपने आप को टॉर्चर कर लेते हैं, मारते हैं। बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, नशा पूरा करने के लिए वारदातें करते हैं। लेकिन ये इसके ज़िम्मेदार भी हुक्मरान हैं और कोई नहीं है। अगर हुक्मरान अच्छे हों, मुल्क का देख लो, अब तुर्की में बादशाह थोड़ा सा बीमार हुआ या उसको कुछ भी हुआ है, अवाम ने शोर शराबा, दुआएं की, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं। अगर कोई बादशाह मर भी जाए तो कुछ कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलता। वो अच्छा इंसान है, इसके लिए सब दुआएं कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अच्छा कौन है? सियासतदान है ही नहीं, सब अपने पेट पाल रहे हैं। डकैती की वारदातें तो बड़ी हैं, पुलिस कहती है सब अच्छा है, लेकिन आवाम क्या कहती है जिनको ये मसाइल दरपेश हैं? क्या डकैती की वारदातें
वाकई हो रही हैं और इसके बारे में अवामी राय क्या है, ये सुन लीजिए आवाम की जुबान। शहर लाहौर नहीं रहा, कराची बन गया हुआ, पहली बात है। और कराची में ये वारदातें ऐसे होती थी सरेआम, क्या नाम है, 70 ले लो, 125 ले लो, ये सारी मालूमात ऐसे रोज़ होती थी। कभी मोबाइल कोई छीन के ले गया, तो कभी वहाँ पे कोई 125 कोई नया लेता था ना कराची में, तो वो फ़ौरन चोरी हो जाता था। और लोग कहते यार कराची फ़लान है, कराची ये है, कराची वो है, कराची नहीं जाना हमने। और वो कराची बन गया हुआ लाहौर। यहाँ पे कोई डरे मारे या मोबाइल नहीं ले रहा। सबसे पहली बात, मोबाइलों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लोग ख़रीदते नहीं थे। चाइना ख़रीद के चले जाते थे, जो सही मोबाइल होते थे वो ख़रीदते नहीं थे। और लोग कहते हैं यार चाइना भी सही है, चलो गुजारा ही करना है। लेकिन अब देखा जाए ना, अब मोबाइल ख़रीद रहे नहीं हैं। वो इसलिए नहीं ख़रीद रहे, मोबाइलों के रेट तो ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब जो वारदातें स्टार्ट हुई है ना, वो वारदातों की वजह से लोग अब ये काम नहीं कर रहे। वो हमारे पास लोग आते हैं तो वो कहते हैं ये कवर कितने का, हम उसे कहते हैं कवर ये है 400 का। कहते हैं यार आगे हमने फ़ोन बहुत महंगा ले लिया हुआ है, तो चलो हम फिर कभी ले लेंगे, ठीक है। जो 7 कवर आया वो यूज़ कर लेते हैं। ये तो सिलसिलेदार पहले चलता आ रहा है। अब जो सिलसिलेदार हुआ है ना, ये अब यहाँ से बाहर निकलते हैं लोग और गन पॉइंट पे मोबाइल छीन के ले गए हैं। और वो चोर कौन है? वो हमारे लोग ही यहाँ के ही हैं, समझ से बाहर है कौन है वो। और वो जेल से छुटाते हैं, 6 महीने कैद होती है, फिर छुटाते हैं। समझ से बाहर है कि क्या सर्किट है उनका, क्या चक्कर है इनका। तो फिर अभी मैं बाहर गया हूँ, चिंची के पास बैठे ही हो, अभी दो लड़के हैं वो ना जो मट्टा मार के ले गए मोबाइल। तो यार ये कौन लोग हैं? इनको देखना चाहिए कि कोई 70,000 रुपये का मोबाइल लेके आया, कोई 30,000 का मोबाइल लेके आया, और किसी को पहली तनख्वाह मिली है वो लेके आया। ये सोचते नहीं है लोग यार कि ये कितना नुकसान हो रहा है। और उनकी गुर्बत की वजह से हमारा भी काम नहीं हो रहा। सच में ये देख लें, मार्केट ये खाली है सारी, तो ये सारी मार्केटें बंद हो गई हैं। एक वो सामने दुकानें छोड़ गए हैं, वो 6-7 दुकानें वहाँ पे कैमरा दिखाएं उनको, वो दुकानें दिखाएं कि सारी ये मार्केटें आज साथ बंद हो रही हैं क्योंकि हालात हो गए हैं ख़राब। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के पास टाइम ही नहीं है। पुलिस के पास टाइम हो, वो सबसे पहली बात चोर को छोड़े ही ना। जब 6 महीने बाद चोर पैसे दे के छूट जाता है या वैसे निकल आता है, क्या चक्कर है? गेम समझ से बाहर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई हुकूमत जो भी आए गुड आए। इसकी सबसे बड़ी, मैं तो ये समझता हूँ, वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत बढ़ रही है और जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है। जो नौजवान इस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं वो तो इस चीज़ की वजह से हो रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गार है। तो बाकी सुनने में आया और देखने में आया, जो बच्चे छोटे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये वो बच्चे हैं कि जिनके घरों में बाप नहीं है, या बाप है तो वो मतलब कमाता नहीं है, और घर में माँ हैं, बहनें हैं, तो बाहर जब निकलते हैं तो इतना वो मतलब कमा नहीं पाते हैं, घर का सर्कस नहीं चलता, और आ जाकर फिर वो इस चीज़ में पड़ जाते हैं, चोरी डकैती और ये इस तरह की वारदात में। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारे जो मुल्क के हालात है, कम से कम ये चोरी डकैती है ये कम हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आज ये बच्चे हैं, कल को बड़े होकर और ये मज़ीद चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्लों में और इनकी आगे औलादों में ये चीज़ मुंतकिल होगी। क्योंकि मुल्क जो है ये मेरे ख्याल से एक बहुत बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है। इससे काफ़ी इफेक्ट है, जारी बात है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन होती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोग वही हिसाब है, खाना जंगी वाला एक दूसरे से छीनना शुरू हो गया है। तो कस्टमर भी बेचारा परेशान है, पता नहीं लोग किस हालात में पैसे जमा करके मोबाइल लेते हैं, उनका क्या कसूर है। अब कई दफ़ा कई कस्टमर हमारे से सेट लेके गए हैं, तो वो एक कस्टमर तो बता रहा कह रहा अभी 2 दिन नहीं हुए तो कस्टमर उसे गन पॉइंट पे छीन के ले गया। तो दोबारा वो बेचारा मजबूरी के तहत, ज़रूरत के तहत किसी से उधार पकड़ के पैसे, जो मोबाइल 50-60 हज़ार का लेके गया था, वो अब आगे 10-12 हज़ार रुपये पे आ गया कि यार क्या करें, डर लगता है, छीना गया, इतना महंगा फ़ोन अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे मुल्क के तो हालात आप आवाम के सामने ही हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कि जो महंगाई का दौर चल रहा है, क्राइम तो बढ़ना है, स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें कमी तो होनी नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको इसके शर से बचाए। तो कानून भी हमारा मुतहरिक होना चाहिए कि जहाँ पे ये लोग वारदातें ज़्यादातर करते हैं, गन पॉइंट पे बाहर पे बाइक्स पे फिरते हैं ये डाकू चोर, तो ये वहाँ पे ज़्यादा करें ताकि इनको पकड़ा जाए, इनको सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि ये इस तरह के काम ना करें। बाकी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल। जी वही नई जनरेशन है सारी, यंग 16-17 साल 18 साल के बच्चे हैं, जो नए नए शौक़ हैं, नए नए नशे लग चुके हुए हैं,
ये चीज़ें आ गई हैं तो उनको वो फिर ये नशे हासिल करने के लिए, याशी करने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता है कि वो मोबाइल छीनते हैं, बेच देते हैं और ख़रीदने वाले उनसे बड़े मुजरिम हैं जो इस तरह के मोबाइल ख़रीदे, जिनको पता है कि जो इस तरह के ख़रीद रहे हैं। नहीं तो इनकी जो एप्लीकेशन ई गैजेट आ गई हुई है, यहाँ पे कोई कस्टमर बेचने भी आता है, अगर उस पर रिपोर्ट हुई होती है तो वो उसी वक्त चोर भी पकड़ा जाता है और मोबाइल भी रिकवर हो जाता है। और जिनकी रिपोर्ट लेट होती है उनका मोबाइल बिक जाता है, वो बाद में पता चलता है जी वो उसकी रिपोर्ट हुई है। तो इसमें फिर सारी नई जनरेशन ही है जो ये काम कर रही है। सर एक तो गुर्बत, एक कारोबार के हालात ऐसे हैं, जो मज़दूर है वो शाम को जब उसको खाने के लिए कोई पैसा ना मिले तो बच्चों का पेट पालने के लिए वो कुछ ना तो कुछ करेगा ना। ये गवर्नमेंट जो भी है ना, सियासतदान, ये सिर्फ अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और कुछ नहीं। तकरीबन ये अब 70,000 का मोबाइल ले लो, कोई एटीएम से पैसे निकालता वो छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लिया, 70,000 का लिया मोबाइल वो 30 का बिकता है। चोरी करेंगे और क्या करेंगे। इधर रात को आज 3 दिन हो गए हैं, ये चौकी के पास से रात को मोटरसाइकिलें उठाई गई, परसों भी और रात को भी 2 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। क्या करें लोग, हालात ऐसे बदतर हो गए हैं कि मजबूर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तकरीबन 14-15 साल से ज़्यादा नहीं है, आइस पीते हैं, नशे करते हैं। इधर मेंशन में इतने का नशई है ना, हद से ज़्यादा। क्या करें, किसको पकड़ें। वो जो पकड़ते हैं वो आगे से अपने आप को टॉर्चर कर लेते हैं, मारते हैं। बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, नशा पूरा करने के लिए वारदातें करते हैं। लेकिन ये इसके ज़िम्मेदार भी हुक्मरान हैं और कोई नहीं है। अगर हुक्मरान अच्छे हों, मुल्क का देख लो, अब तुर्की में बादशाह थोड़ा सा बीमार हुआ या उसको कुछ भी हुआ है, अवाम ने शोर शराबा, दुआएं की, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं। अगर कोई बादशाह मर भी जाए तो कुछ कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलता। वो अच्छा इंसान है, इसके लिए सब दुआएं कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अच्छा कौन है, सियासतदान है ही नहीं, सब अपने पेट पाल रहे हैं। ये पिछली गली है, यहाँ पे हम कहते हैं हर एक को कि आप यहाँ पे बाइक ना लगाएं, लेकिन ये लगा के निकल जाते हैं। आवाम को भी कहते हैं यहाँ पे, अभी भी देखें ये मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, सिर्फ 30 रुपये 20 रुपये के लिए ना ये अपनी बाइक उठवा लेते हैं। अभी भी ये पीछे 3 बाइकें उठाई गई हैं, इनको कह के थक गए कि इधर ना लगाएं, लेकिन इधर लगा के निकल जाते हैं। ये इधर ही कोई नशे वाले या कोई ऐसे ही घूमते रहते हैं लड़के, वो कह के थक गए हैं कि इनका कुछ करें, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। नहीं, पुलिस एक्शन लेती है जब वो ये मानते नहीं है। ये जिनकी मोटरसाइकिलें उठाई जाती हैं, ये सिर्फ 20 रुपये की खातर अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और भाग जाते हैं। चोर उठा लेते हैं इनकी मोटरसाइकिलें और इनको कह के थक जाते हैं कि यार 20 रुपये टोकन नहीं भी है तो आप इधर लगा लें, बाद में पैसे दे देना। लेकिन वो अभी देखें आप 10 मिनट में रश लग जाएगा वहाँ पे। आप बाइक अपनी सेव करें पार्किंग में ना, तो मैं कस्टमर जो है ना वो कहता है जी हमने लगानी बाइक है, ये हमें कह के जाता है। हम कहते हैं भाई पैसे नहीं, आपके पास कोई मसला नहीं है, 20 भी नहीं, 1 रुपया में ना दे, अपनी बाइक को सेव करो। जिद कर लड़ते भी हैं। वारदात बेरोज़गारी जो है, चोरियाँ चिकारी, महंगाई, इस वजह से है सारा कुछ। और क्या उन्हें कहते हैं जी कि ये सुनने में तो यही है कि ग्रो कोई आया हुआ है। ये तो पार्किंग में हम बहुत मतादों की ड्यूटी करते हैं, वो तो स्टिकर लगा के भी बाइकें चोरी कर रहे हैं बाइक से। भाईजान वजह तो ये है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, और ज़्यादातर लोग आप देख लें कि ये मुंशियात का काम जो कर रहे हैं, ये जो पाउडर पे लग गए हैं, चरस अफीम वगैरह पे जो लग गए हैं, ये यहाँ पर मैं आपको किसी टाइम आना, आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मैं इतने पाउडर वगैरह दिखाता हूँ कि यहाँ पर बेचते भी हैं और करते भी हैं, और कई टिकटियाँ कर चुके हैं। इस दुकानदार की कई टिकटियाँ, हमारे होटल की कई टिकटियाँ कर चुके हों, यहाँ के ताले तोड़ गए हों, कम से कम एक मरतबा 36,000 रुपये ले गए हैं। यह सामने स्टोर है वहाँ पे उनका पता नहीं 2-3 लाख रुपये उठा के ले गई। पुलिस पकड़ती है, घंटे बाद फिर छोड़ देती है, कहते हैं इनके पीछे कोई आने वाले नहीं है, इन्होंने दाल खानी है ना ही खाए वहाँ पे, फिर छोड़ देते हैं। भाई इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पठान तो आ रहे हैं अफगानिस्तान से, इनके ऊपर एक्शन लेने चाहिए, इनका कोई बंदोबस्त करना चाहिए, कोई इशू इनके लिए बनाना चाहिए कि ऐसे ना है। अब देख ले चमन बॉर्डर से कितने लोग आते हैं, तोरखम बॉर्डर से लोग आते हैं, अफगानिस्तान के साइड से आते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि बस यहाँ पर पाकिस्तान है, बस जो है गया वो है। इशू ये है कि वो नशा करते हैं, आइस पीते हैं, फिर उनको समझ ही नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फिर उनको तड़प होती है नशे की, फिर वो चाहे जो मर्ज़ी करें।
कल मैंने एक देखा कैमरा उठा रहा था, मैंने कहा कैमरे के साथ क्या करता है, कहता है बेचना है। मैंने कहा क्या करेगा, कहता है ठीका लगाना। तो मैंने कहा यार देख आजकल के क्या हालात हो रहे हैं, नशे पूरे करने के लिए ना किसी को बैन को देखते हैं, ना किसी का घर देखते हैं, ना किसी का पर्दा सोचते हैं, क्या करें। ये हमारे हुकूमत का भी काम है कि इनके खिलाफ एक्शन ले। आप बाहर चले लक्ष्मी चौक, वहाँ पर थड़े बड़े हुए पोल्ट्रियों के। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि डकैती की वारदातों में कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और मुलजमान को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।